Namaskar everyone, welcome again to the chapter number 4, Mughal Empire. In previous two lectures we have explained what are the rulers, what were the rulers of the dynasty. The famous ruler was Akbar. So from starting I am revising some topics. First ruler is Babur. Then after the death of Babur, Humayun became the ruler. I have noted down the time here also here. 1526 to 13 means only 4 years. 4 years Babur ruled, and for a short period of time. Panipat, first battle of Panipat fought by the Babur and Ibrahim Lodi, and he established the Mughal dynasty in India. Fine. So who was the founder of the Mughal dynasty? Babur. Then second ruler was Humayun. He was the son of Babur. But two time period is given there. I have also told you about the battles which were fought by the Humayun, and he defeated and he went to the Iraq. And after that he regained their Mughal empire. He re-established the Mughal empire in India. Fine. So 5 years here and 1 year here. Total 6 years, short period of time. And after the death of Humayun, the great ruler of this dynasty was Akbar became the ruler. He was only 14 years old when he became the king. बहुत ही कम एज में उसने रूल किया, बहुत लंबे टाइम तक इसने रूल किया, from 1556 to 1605. Clear? Now today's topic is the remaining rulers, remaining powerful rulers. First we will discuss about the Jahangir, then after the Shah Jahan, and after that Aurangzeb. So I am explaining this all remaining topics according to your book. So please open your book, the page number 39. Fine? Page number 39. I am showing some pictures also in this lecture, the special about the Shah Jahan's architectures. So listen carefully and keep your books with you. Okay students, you can more understand by the language of the books which is given in your book. Fine. So page number 39. So students, let's start with the topic is Jahangir. He was the son of the Akbar who ruled over the 1605 to 1627. There is a mention Akbar eldest son Nasruddin Muhammad Jahangir. What is the full name of Nasruddin Muhammad Jahangir? Fine. कंक्वायर ऑफ द अकबर, जिसे क्या कहा जाता था, कंक्वायरर ऑफ द वर्ल्ड, सक्सीड हिम टू द थ्रोन इन द 1605. कब रूलर बना ये? ही वॉज बिकम द रूलर 1605. फाइन. जहांगीर इम्प्रीजन हिज एल्डर्स सन. अब जो जहांगीर है उसने अपने सबसे जो एल्डर्स सन था जिसका नाम था खुसरो, बहुत फेमस रहा हिस्ट्री में, हु हर बाउंडेड अ डिज़ायर ऑफ द बिकमिंग द एम्परर. जो जहांगीर की जगह क्या बनना चाहता था, एम्परर, तो उसे उसने क्या कर दिया, इम्प्रीजन, उसे जेल में डाल दिया. ही ब्रॉट एन एंड टू द 4 decades long struggle with the मेवाड़ by the defeating राणा अमर सिंह in 1615. यहाँ पे मेवाड़ का नाम आया है. Mewar, the relations of the Mewar with was not good with the Mughals. Mughals के जो relations थे मेवाड़ जो है इसके साथ अच्छे नहीं थे. सो 4 decades यानी 4 decades तक, decades होता है 10 ईयर की ड्यूरेशन को हम क्या कहते हैं, decades. आगे का पॉइंट, ही ऑल्सो subdued Musa Khan and his 12 confederators known as the Barabulian, who control the Sanargon in Bengal. अब यहाँ पर उसने बहुत कोशिश की अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने की, बढ़ाने की. ड्यूरिंग जहांगीर रीजन अ नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम यूरोप इंक्लूडिंग द विलियम हकास. अब यहाँ पे 2 नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए हाईलाइटेड है, विलियम हकास एंड सर थॉमस रॉय, विजिटेड इंडिया विद द एम of the securing the trade
ट्रेड कंसेशन यानी वो जो ब्रिटिश से कंपनी आई थी ट्रेड कंसेशन के लिए, तो जहांगीर के टाइम पर वो आए कहाँ पर, इंडिया में। विजिटेड ऑफ द सर थॉमस रॉय, द इंग्लिश वर ग्रांटेड परमिशन टू सेट अप अ फैक्ट्री एट सूरत, और सबसे पहले जहांगीर ने परमिशन दी उन्हें सूरत में फैक्ट्री सेटअप करने की। देखिए ब्रिटिश रूल भी यहाँ धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है। जहांगीर 20th एंड जहांगीर्स 20th एंड लास्ट वाइफ नूर जहाँ, रियल नेम वॉज मेहरुनिसा। जो जहांगीर की जो वाइफ थी जिसका नाम क्या था, नूर जहाँ, मेहरुनिसा नाम था उसका। ही वॉज एक्सट्रीमली talented and courageous and the witty and the intelligent woman who exercised considerable influence in the royal अफेयर्स। अब इनके जो थे बहुत सारे इन्फ्लुएंस थे यानी बहुत प्रभाव था इसका एडमिनिस्ट्रेशन में। अब क्या क्या चीज़ें उसने की, शी प्रमोट हर फैमिली मेम्बर्स टू द इम्पोर्ट द पोस्ट्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन। उसने सभी इम्पोर्टेंट पोस्ट पर किसे पोस्ट किया, अपने अपने इम्पोर्टेंट लोगों को, फैमिली के मेम्बर्स को। Then she stuck coin in her name during the last year of जहांगीर रीजन। उसने अपने नाम के कॉइन भी बनवाए लास्ट टाइम में जहांगीर के। ये आपका क्वेश्चन भी आया था एमसीक्यूज में। नाउ थर्ड इज देयर वाज अ स्ट्रगल फॉर द पावर बिटवीन द नूर जहाँ एंड द प्रिंस खुर्रम लेटर शाहजहाँ, जहांगीर सन फ्रॉम हिज द प्रीवियस मैरिज। अब देखिए यहाँ पर जो जहांगीर का सन था जिसका नाम शाहजहाँ था, जो उसके बाद राजा बना, उसका और उसकी जो मदर थी नूरजहाँ, उसका कई बार स्ट्रगल होता रहता था किसको लेकर, अपनी अपनी जो पावर से उनको लेकर। जहांगीर वॉज डीपली फैक्सीनेटेड बाय द आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स। जहांगीर जो है बहुत ही फैक्सीनेटेड था यानी उसे आर्ट और जो आर्किटेक्चर्स था उससे बहुत प्यार था। ही वॉज अ कीन नेचुरलिस्ट एंड द ब्रिट वेदर्स हिज ऑटोबायोग्राफी। अब यहाँ पे ऑटोबायोग्राफी की बात है। ऑटोबायोग्राफी क्या होती थी, आत्मकथा। तारीक़ जहांगीरी, क्या नाम है उसका, तारीक़ जहांगीरी इज़ अ विटल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हिज रीजन, जिससे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। He also recorded his the detailed descriptions of the plant and animal, जिसमें उसने बहुत सारी descriptions भी लिखी है plants and animals की। Now next I'm explaining about the Shah Jahan who became the ruler of the Mughal Empire in 1627. 258. After long times he ruled over here. Shah Jahan ascended the throne in 1627 and his name Shah Jahan is the Persian means king of the world, जिसके नाम का मतलब था king of the world। शाह जहाँ के नाम के king of the world। During his reign the three major Deccan states बीजापुर, गोलकुंडा एंड अहमदनगर, ये थ्री जो डेक्कन रीजन्स के थे वो स्ट्रगल, उनके साथ इसने काफ़ी स्ट्रगल किया। द बुंदेल राजपूत who revolted during the period were also declared with the efficiently, इनके साथ इनका वो भी हुआ, रिवॉल्ट हुआ। रिवॉल्ट यानी कई सारे विद्रोह भी हुए। द इसके बाद है द Pashanama Chronicles of the Emperor. He is the official history of the Shah Jahan's reign. It was authored by the Abul Hamid Lahori, जो किसने लिखी थी, अबुल हमीद लाहौरी ने लिखी थी इसे। इसके बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। हमीद लाहौरी, ही शाहजहां's नामा by the ईयान खान इज़ अनादर इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ दिस पीरियड, उसने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। शाहजहाँ रूल्ड हिज एम्पायर विद अ फर्म हैंड एंड kept himself informed about the minutes details in administration and military campaign, यानी उसको मिनट्स में इंफॉर्मेशन मिलती थी, यानी बहुत एफिशिएंटली वो वर्क करता था। आगरा, लाहौर, दिल्ली एंड द Ahmednagar were the connected to the trades activities through and the network of the
रूल्स, यानी कि इन सब पर उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। हर एक चीज़ उसने बहुत सिस्टमेटिकली अरेंज की थी। ही टुक द एक्सटेंसिव इंट्रैक्शन इन द ग्रोथ ऑफ द लिटरेसी एंड आर्ट, लिटरेचर और आर्ट पर उसने बहुत फोकस किया। एंड गेव द सफिशियंस इंकरेजमेंट्स टू द स्कॉलर्स, फिलोसोफर एंड आर्टिशियन, और उन्हें बहुत सपोर्ट भी किया उसने, किसे, आर्टिशियंस को या आर्किटेक्चर्स को। ठीक है, सो ये हमने अभी बात की किसकी, जो हमारे शाह। Now about the Shah Jahan, the Taj Mahal at the Agra built by the Shah Jahan। आप सभी को पता है कि जो ताज महल है जो 7 वंडर्स में आता है, इट वॉज बुल्ड बाय द शाहजहाँ इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज महल। उसने अपनी वाइफ की याद में बनवाया। एंड व्हेन द शाहजहाँ ग्रू ओल्ड, अ स्ट्रगल फॉर द सक्सेशन बिगन अमॉन्गस्ट हिज सन। अब जैसे जैसे शाहजहाँ है जो ओल्ड होता गया, तो उसके जो 4 बेटे थे, दारा, शिको, शुजा, मुराद एंड औरंगजेब, इन चारों के बीच में राजगद्दी को लेकर बहुत सारा स्ट्रगल हुआ। सब में लड़ाई हुई कि वो सभी राजा बनना चाहते थे। एट लास्ट औरंगजेब इमर्ज सक्सेसफुल एंड द ऑक्यूपाइड द थ्रोन। और लास्ट में कौन जीता? औरंगजेब। औरंगजेब ने ऑक्यूपाई किया। देन 1658 यहाँ पर फिर द शाहजहाँ बिकम द औरंगजेब्स prisoners at the Agra fort and 1658 CE and eventually died in the 1666। अब देखिए यहाँ पे औरंगजेब जो है, औरंगजेब, दारा, मुराद, शिको, ये 4 बेटे थे किसके? शाहजहाँ के। चारों में ही बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुआ। इसके बाद स्ट्रगल में कौन जीता? औरंगजेब। और औरंगजेब के राजा बनते ही उसने शाहजहाँ को जेल में डाल दिया। कौन सी जेल में डाला उसने? प्रिजनर एट द आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट में एक प्रिजन था वहाँ पर, और वहीं जेल में ही उसकी डेथ हो गई। देखिए जो रूल के लिए जो है अपने फादर को उन्होंने क्या किया, उसमें डाल दिया जेल में। नाउ अबाउट द औरंगजेब, फाइन, इट इज़ द लास्ट रूलर। यहाँ पे लास्ट पावरफुल रूलर के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसको जल्दी से हम एक्सप्लेन करते हैं। औरंगजेब्स फॉर्मली असेंडेड द थ्रोन इन 1658 CE आफ्टर द विनिंग द वॉर ऑफ सक्सेशन अगेंस्ट हिज 3 ब्रदर। तीनों भाइयों से लड़ने के बाद उसे वो गद्दी मिली थी। ही रूल्ड इंडिया फॉर almost 50 years and adopted the little Alamgiri conquer of the world. During his reigns, Mughal Empire reached its zenith and covered almost the entire Indian subcontinent। और उसने अपने रूल को इतना एक्सपेंड किया कि मोस्टली पूरा इंडिया ही उसके अंडर में था। His reasons saw the revolt of many groups of people। कई सारे रिवॉल्ट हुए उसके टाइम में, including the farmers allies such as the Rajput, Jat, Bundels and other communities such as Sikh, Satnamis and Marathas। इन सब का ही उसे क्या करना पड़ा? विरोध। सब ने इसको प्रोटेस्ट किया, किसे? औरंगजेब को। ये सारे नाम दे रखे हैं यहाँ पे। हिज टफेस्ट स्ट्रगल वाज अगेंस्ट द मराठा लीडर शिवाजी। सबसे ज़्यादा जो टफ जो उसको कंपटीशन दिया वो किसने दिया? मराठा लीडर शिवाजी ने। हु लेड द फाउंडेशंस ऑफ द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ मराठा। औरंगजेब्स रीजन्स पॉलिसी ब्रदर्स हिम इज कॉन्फ्लिक्ट विद द 9th सिख गुरु तेग बहादुर। यहाँ पे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सिख तेग बहादुर जो है उसको उसने मारा था, किसने? औरंगजेब ने। ही ऑल्सो अंडरटुक अ सीरीज ऑफ द अनपॉपुलर measures such as the re-impositions of the जजिया टैक्स ऑन द नॉन मुस्लिम। जो भी नॉन मुस्लिम थे उस पर उन्होंने क्या लगाया था? जजिया टैक्स। जजिया एक रिलीजियस टैक्स था, यानी जो हिंदू नहीं थे उन्हें अगर अपने रिलीजियस को फॉलो करना है तो उन्हें क्या देना पड़ता था? जजिया टैक्स। औरंगजेब इज रिमेंबर्ड हिस्ट्री एज अ ऑर्थोडॉक्स, हार्डवर्किंग एंड द गॉड फियरिंग एम्परर। उसे जाना जाता है हिस्ट्री में एक हार्ड वर्किंग के रूप में। सिंप्लिसिटी ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डिफाइन हिज द लाइफ स्टाइल। बहुत सिंपल था, सो मच सो दैट ही केम टू द रिगार्ड एज अ जिंदा पीर एंड द लिविंग सैंट। उसे क्या नाम दिया गया? जिंदा पीर एंड लिविंग सैंट। यानी इतना सिंप्लिसिटी थी उसमें, इतना हार्ड वर्किंग था, तो उसे क्या नाम दिया गया? जिंदा पीर एंड लिविंग सेंट। सेंट होते साधु जिसको बोलते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ द मैनी वॉर्स एंड रिवोल्ट्स एंड द औरंगजेब्स इन्वॉल्वमेंट इन द डेक्कन फॉर अ
prolonged struggle against the Maratha under the Shivaji weakened the empire। अब जब मराठा के साथ इनका स्ट्रगल हुआ तो कहीं ना कहीं इनका जो मुग़ल एम्पायर वो वीक होता गया, कमज़ोर होता गया। हिज डेथ इन 1707 ही वर्चुअली मार्क द एंड ऑफ द ग्रेट मुगल्स। और उसकी डेथ के साथ ही जो इतना ग्रेट एम्पायर था उसका एंड माना जाता है। He followed by a war succession amongst his son and the gradual weakened the Mughal dynasty। यहाँ पर उसके बाद जो उसके सन हुए वो इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे। जो इन सिचु ये देखिए रूल है, जितना भी ब्लू कलर से आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सारा ही जितना भी एरिया है कवर हो रहा है यहाँ से, ये पूरा किसके अंडर में था? औरंगजेब के। यानी कि इतना बड़ा एम्पायर जो है उसने इस्टेब्लिश किया। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो मुग़ल एम्पायर है उसके बारे में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।